پچھلے دنوں حیدرآباد میں کتابی میلے میں میں نے ایک کتاب دیکھی میڈیکل سائنس کی. آج کچھ لوگ کہتے ہیں جلسوں میں جا کے کیا کرو گے, مولوی لوگ قصہ کہانی بیان کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, پچھلے دنوں حیدرآباد میں کتابی میلے میں میں نے ایک کتاب دیکھی میڈیکل سائنس کی. کتاب کا نام ٹوڈیز میڈیکل سائنس, لکھنے والا ڈاکٹر ایل ایس جان فرام کیلیفورنیا ان امریکہ, دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر. اس کتاب کو جب میں نے حیدرآباد پلے گراؤنڈ میں خریدا اور اس کو کھولا تو اس کے ٹائٹل پہ کیا لکھا تھا سنیے. When I opened this book, what has been written on the title of this book? اس کتاب کو جب میں نے کھولا تو اس کے ٹائٹل پہ کیا لکھا ہوا تھا, The medical science is the changed name of محمد سنہ. میڈیکل سائنس محمد رسول اللہ کی سنتوں کا تبدیل شدہ نام ہے. یعنی محمد رسول اللہ کی جتنی سنتیں ہیں وہی میڈیکل سائنس ہے. یہ کون بول رہا ہے؟ ایل ایس جان بول رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایل ایس جان کہہ رہا ہے. یہ کون لکھ رہا ہے؟ ایک غیر مسلم ڈاکٹر لکھ رہا ہے. یہ کون بول رہا ہے؟ ایک عیسائی سائنٹسٹ بول رہا. اچھا, تحقیق اس نے کہاں سے کی؟ ریسرچ. توریت سے نہیں, زبور سے نہیں, انجیل سے, ویدوں سے, اپنشد سے, منو اسمرتی سے, بھگوت گیتا سے, آنگا سے, رامائن سے, تریپٹک سے, زنت سے, اوستا سے, دھمپت سے, گاتھا سے, ماتھا سے, دساتیر سے, اوستا سے, آدی گرن سے, گرو گرن سے, دسم گرن سے. جی نہیں, بلکہ بخاری شریف سے, مسلم شریف سے, ابو داؤد سے, ترمذی سے, نسائی سے, ابن ماجہ سے, یعنی صحاح ستہ سے تحقیق کر کے اس نے ایک کتاب لکھی, ٹوڈیز میڈیکل سائنس. لحق کے بولیے. اور اپنے کتاب کے دوسرے صفحے میں لکھتا ہے, The first and biggest medical surgeon in the world, Muhammad peace be upon him. یعنی پہلی اور سب سے بڑا سرجن جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. آج سے 1400 سال پہلے یہ ایکس رے نہیں تھا, یہ آپریشن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے تھے, کوئی اعلیٰ خوردبین بھی نہیں تھا, لیکن میرے آقا سب سے بڑے سرجن. اسی لیے تو میں کہتا ہوں, اے بھیا, اے بابو, ذرا سے کو دو. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کیا کہ یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا. اور لحق کے بولیے, یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا, سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا. پیمبر نہ ملے گا. اور یہ شعر آج کے جو بچے ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے, کہ سونے کا محل گرچہ بنا لو جہان میں, اج سونے کا محل, سونے کا محل, سونے کا محل گرچہ بنا لو جہان میں, ماں باپ کے قدموں کے برابر نہ ملے گا, برابر نہ ملے گا, ماں باپ کے قدموں کے برابر نہ ملے گا. The first and biggest medical surgeon in the world, Muhammad peace be upon him. یعنی پہلی اور سب سے بڑا سرجن جو ہے وہ میرے آقا محمد الرسول اللہ. اور صرف کہا ہی نہیں ہے کاکر گاڑی والوں, بلکہ اس نے ثابت بھی کیا ہے. آج پوری دنیا یوگا کی چکر میں ہے. الحمدللہ اگر آپ سنت رسول پہ تقریر سن لیں تو پوری دنیا یوگا کو بھول جائے اور سنتوں کو اپنانی والی بن جائے. مگر سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ جس کے لیے آقا تشریف لائے پہلے ہم اپنائیں, ہم پہلے سنتوں پہ چلے, پھر پوری دنیا انشاءاللہ وہ ہمارے نقش قدم کو چومے گی.
डॉक्टर साहब कहते हैं आजकल क्या है, लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का लो है, रात को नींद नहीं आती, बड़ी बेचैनी रहती है। डॉक्टर साहब कहते हैं आजकल क्या है, लोगों का आजकल पब्लिक में बड़ी कमजोरी है, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाते हैं, लेकिन जब पूछो सलीम, करीम, नसीब, तस्नीम, तनीम, जुनैद, विनोद, अकरम, विक्रम, तुम्हारी तबीयत कैसी है जी, तो कहते हैं मुझे एसिडिटी है, गैस प्रॉब्लम है, बदहजमी है, बदनजमी है, खाना हजम नहीं होता, कच्ची डकारें आती हैं, मैदे का मरीज हूँ, पेट खराब रहता है। डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं अरे हम अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाते हैं, लेकिन हमारी सेहत अच्छी क्यों नहीं रहती है, और इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं वी ईट फूड फॉर विटामिन्स, हम खाना खाते हैं विटामिन के लिए, एंड विटामिन आर मेजर एंड द रीजन ऑफ दिस मेजर इन ब्लू वी ईट फूड बाय आउटसाइड एंड अदर फूड फॉर सेकंड हैंड। वो कहते हैं हम खाना खाते हैं विटामिन के लिए, और विटामिन जो है एक वजन रखते हैं, उस वजन की वजह से वो प्लेट में नीचे बैठ जाते हैं। हम ऊपर का खाना जल्दी जल्दी मार लिए, नीचे का प्लेट में छोड़ दिए। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं ऐ लोगों, अगर तुम्हें विटामिन चाहिए तो जो ग़िज़ा पेंदे में लगी है, पेंदे में बैठी है, उसको लाजमी तौर से खाओ। मैंने कहा क्यों, कहा इसलिए कि तमाम खानों में से पेंदे में विटामिन ज्यादा होता है। जैसे विटामिन कॉम्प्लेक्स, मिनरल सॉल्ट, वो सिर्फ पेंदे में होते हैं। आगे डॉक्टर साहब कहते हैं कि उस ग़िज़ा को पेट में हजम करने के लिए उंगलियों को चाटो। मैंने कहा क्यों, कहा इसलिए कि ये उंगलियों में जो ये मसाम है, धारियां है, लाइन्स है, इससे प्लाज्मा खास तौर से खारिज होता है, निकलता है, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वाज़ेह नजर आता है। वो प्लाज्मा आपके हाजमे के लिए, आपके पेट के लिए, आपके मैदे के लिए बहुत फायदेमंद है। ए मुसलमानों, ये कौन बोल रहा है? एलिस जॉन बोल रहा है। ये कौन कह रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर कह रहा है। ये कौन कह रहा है? एक ईसाई साइंटिस्ट कह रहा है। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाओ तो जाने कायनात, मुअल्लिम कायनात, पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया, ए दुनिया वालों, जब तुम खाना खाया करो तो प्लेट को अच्छी तरह साफ किया करो, उंगलियों को चाटा करो। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। अगर आज हमने कायदे से इस्लाम का तारुफ करा दिया तो ये चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली की जरूरत नहीं पड़ेगी, दीवारों पे लिखना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लाइन लगाकर कलमा पढ़ो, हमें टाइम नहीं कि एक एक को पढ़ा। लेकिन आज निजामे मई कदा बिगड़ा हुआ है, किस कदर साकी उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। हदीस रसूल मौजूदा जमाना इन द लाइट ऑफ साइंस, और जिंदगी में रमक पैदा करो। डॉक्टर साहब कहते हैं आजकल क्या है, लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का लो है, रात को नींद नहीं आती, बड़ी बेचैनी रहती है, किसी को शुगर है, किसी के सर में दर्द है, पूरी रात करवटें लेते हैं बिस्तर पे। इसकी वजह क्या है? आओ इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। मचल के बोलिए। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, सुनिए, आपका जलसा कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। वो कहते हैं वी स्लीप रॉन्ग, हम सोते गलत हैं। मैंने कहा कैसे? तो डॉक्टर साहब ने कहा ऐसे, इफ आई स्लीप ऑन द टॉप सिट राइट हैंड, इट इज माई एक्सपीरियंस, ऑल द बॉडी लैंड्स ऑन हार्ट। वो कहते हैं अगर हम उल्टे हाथ की तरफ, यानी इस तरह, बहुत सारे लोग इस तरह सोते हैं, अगर हम उल्टे हाथ की तरफ यानी इस तरह सर रख के सोते हैं तो हमारा तजर्बा कहता है कि दिल और मैदा दोनों इस साइड है, तो दोनों पे जिस्म का बोझ होता है। उस बोझ की वजह से या तो आपका दिल तेजी से धड़केगा, या आहिस्ता, या घबराहट महसूस होगी, लोग सोते से उठ जाएंगे, उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं ऐ लोगों, तुम सोना चाहते हो, दिल को आजाद रख के? आप कहिए जी। तो वो कहते हैं इट मीन्स स्लीप ऑन द साइड ऑफ राइट हैंड।
सीधे हाथ की तरफ सर रख के सो, ताकि तुम्हारा दिल आजादी के साथ धड़के, न ब्लड प्रेशर हाई होगा न लो, सुकून की नींद आएगी। आजमा कर देख लो ए मुसलमानों, ये कौन बोल रहा है? एल.एस. जॉन बोल रहा है। ये कौन कह रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर कह रहा है। ये कौन कह रहा है? एक ईसाई साइंटिस्ट कह रहा है। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन 1400 साल पहले पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया, ए दुनिया वालों, जब तुम सोया करो तो सीधे हाथ की तरफ सर रख के सोया करो। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। अगर आज हमने कायदे से इस्लाम का तारुफ करा दिया तो इंशाअल्लाह दौड़ दौड़ कर बढ़ती नजर आएगी। एक चीज और देखिए, आज कुछ लोगों को शिकायतें रहती है कि सुन्नी मौलवी लोग नमाज पे नहीं बोलते। उन्हें पता ही नहीं कि सुन्नी उलमा नमाजी पे नहीं बल्कि जाने नमाज पे बोलते हैं, जाने कायनात पे बोलते हैं, रूहे कायनात पे बोलते हैं। आज से 2 साल पहले की बात है, मैं बनारस से लखनऊ जा रहा था। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बनारस में हो रही थी। तो जिस ट्रेन में मेरा रिजर्वेशन था, गरीब रथ में, अल्लामा अब्दुल मुबीन नुमानी हमारे जमात के बहुत बड़े आलिम हैं, उनके साथ मैं सफर पे था। तो जिस डब्बे में गया तो क्या देखा, उस कंपार्टमेंट में बड़ी भीड़ लगी है और एक बाबा जी बैठे हैं जिनका नाम था रमेश बाबा। कभी कभी वो आस्था चैनल पे आते हैं, बेंगलोर के रहने वाले हैं। तो मौलाना ने कहा, देखो रूहुल अमीन, वहां भीड़ क्यों लगी हुई है, क्या वजह है? तो जब मैं गया तो देखा एक बाबा जी बैठे हैं, 15-20 लोग बाबा को ऐसे करके घेरे हुए हैं। अब बाबा लोगों को कुछ टिप्स दे रहे, कुछ बता रहे थे। क्या बता रहे थे? सुनो। चेहरे में रोशनी कैसे पैदा होगी, चेहरा कैसे चमकेगा, खून कैसे दौड़ेगा, दिमाग कैसे तुम्हारा ठीक ठाक रहेगा, वगैरह वगैरह। तो मैंने बाबा से पूछा, हाउ डिड यू बिकम आइडियल पर्सन बाबा? मैंने कहे, बाबा आपको इतनी इज्जत क्यों मिल रही है और आप आइडियल पर्सन कैसे बन गए? तो बाबा ने मुझसे कहा, मौलाना, आई टेक सच एक्सरसाइज फॉर दिस दैट अदर डिड नॉट टेक। उसने कहा कि मैं इसके लिए रोजाना एक ऐसी वर्जिश करता हूँ जो दूसरे नहीं करते। मैंने कहा, आप क्या करते हैं बाबा? तो बाबा ने मुझसे कहा, मौलाना, मैं रोजाना 15 मिनट उल्टा खड़ा रहता हूँ। क्या? उल्टा खड़ा रहता हूं। मैंने कहा, वो कैसे? कहा, सर को नीचे और टांग को ऊपर कर लेता हूं। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों करते हैं बाबा? तो उसने बड़ी अच्छी बात कही, सुनिए। उसने कहा, मौलाना सुनो, ये जो मेरा दिल है एक पंप है, ये दिल पंपिंग सिस्टम, ये दिल एक पंप है। और जब पंप नीचे के मंजिलों पे पानी भेजता है तो बड़ी आसानी के साथ पानी जाता है, लेकिन जब ऊपर के मंजिलों पे भेजते हैं तो ऊंचाई होने की वजह से पानी का प्रेशर ड्रॉप होता है। यही वजह है कि हम टिल्लू पंप और मशीन के जरिए पानी भेजते हैं ऊपर, लेकिन नीचे नहीं। तो उसने कहा, मौलाना सुनो, खून का मंबा, चश्मा, मसदर, मखरज ये दिल है। यहीं से खून कान में, यहीं से खून आंख में, यहीं से खून नाक में, यहीं से खून पेशानी में, यहीं से खून दिमाग में, यहीं से खून सर में, यहीं से खून गर्दन में, यहीं से खून चेहरे में। तो इसीलिए मैं उल्टा खड़ा हो जाता हूँ ताकि मेरे दिल से मेरी आंख में, मेरे दिल से मेरे कान में, मेरे दिल से मेरी नाक में, मेरे दिल से मेरे दिमाग में, मेरे दिल से मेरे सर में, मेरे दिल से मेरी गर्दन में ज्यादा से ज्यादा खून दाखिल हो जाए। तो मैंने बाबा से कहे, बाबा अरे खून लेने के लिए उल्टे खड़े होने की क्या जरूरत थी? उसने कहा, तो मैंने कहा, बिल्कुल आसान तरीका। उसने कहा, क्या? मैंने कहा, अगर आप कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते तो ये इबादत आपको दिन में 5 मरतबा करनी नसीब होती। 5 मरतबा। उसने कहा, कैसे? मैंने कहा, ऐसे। इन जनरल कंडीशन द हार्ट ऑफ द पीपल आर डाउन एंड हेड अप इन सिटिंग एंड लेइंग इन स्लीपिंग। मैंने कहा, बाबा तुम बैठे हो, तुम्हारा सर ऊपर है, दिल नीचे। कुछ लोग खड़े हैं, उनका भी सर ऊपर, दिल नीचे। कुछ लोग तकिया लेके सोते हैं, उनका भी सर ऊपर, दिल नीचे। इन तीनों सूरतों में खून ऊपर जाता है, लेकिन बट नॉट इट मच क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी नहीं जाती, लिहाजा स्किन जिल्द मुर्दा सी हो जाती है। लेकिन खुदा की कसम, जैसे ही कोई अल्लाह का बंदा जब सजदे में जाता है तो उसका सर नीचे, दिल ऊपर।
सजदे में गए, अल्लाहु अकबर, दिल ऊपर, तो छोटी छोटी रगों में भी खून पहुंचता हुआ नजर आता है, दौड़ता हुआ नजर आता है, गर्दिश कर रहा होता है। यही वजह है कि जितने नमाजी हजरात होते हैं उनके चेहरों में खास नूर होता है। ये कौन बोल रहा है? एलएस जॉन बोल रहा है। ये कौन कह रहा है? एलएस जॉन कह रहा है। ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर कह रहा है। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन 1400 साल पहले पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा रातों को उठकर सजदे करेगा, लंबे सजदे करेगा, अल्लाह ताला उसे सुलह का नूर अता करेगा। ज़हने इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं रसूल, हमारे हैं रसूल। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। एक चीज और देखिए, आजकल हमारी माँ बहनें जब पर्दा करती हैं तो लोग कहते हैं इस्लाम औरतों पे जुल्म कर रहा है। खुदा की कसम, एक एक पॉइंट इस तरह है कि अगर आप पूरी जिंदगी खर्च करेंगे तो आपको ये बातें मालूम नहीं हो सकती है, मगर ये जलसे की बरकत है कि आपको बहुत सारी बातें आसानी से आपके मालूमात में फराहम मैं कर रहा हूं। कहते हैं इस्लाम औरतों पे जुल्म कर रहा है। आज पूरी दुनिया जानती है और चिल्ला रही है कि औरतें महफूज नहीं है, लड़कियां महफूज नहीं है। पूरी दुनिया में गैज़ो गजब के शरारे फूट रहे हैं, लड़कियों को बचाओ, औरतों को बचाओ। पैगंबर ने 1400 साल पहले पर्दे का हुक्म देकर बचाते नजर आ रहे हैं। आज हम 10 रुपये का कीमा खरीदते हैं तो उसको झोले में रखते हैं ताकि चील कौवा ना लेके भाग जाए। 2 रोटी बच जाए रात में तो उसे ढांक देते हैं कि ताकि चूहा ना ले जाए। 100 रुपए के नोट को सीने से लगा के रखते हैं कि कोई जेब कतरा ना ले जाए। क्या औरतों की हैसियत 1 रुपए 1 पाव कीमे से भी कम है? 2 रोटी से भी कम है? 100 रुपए के नोट से भी कम है? इसका तो बीमा कर रहे हो, उसे खुलेआम छोड़ दिए हो, गाय भैंस की तरह टहलते रहे। याद रखिए, डॉक्टर एलएस जॉन लेडीज के ऊपर लिखते और कहते हैं कि आजकल हमारी माँ बहनें टीवी पे इश्तहारात देखती हैं, मैगजीन पढ़ती हैं, न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल करती। कशिश के लिए कीले जो निकलती है उसके लिए फेयर एंड लवली क्रीम, सॉन बॉक्स क्रीम, चार्मे क्रीम, लैक्मे क्रीम, अयूर क्रीम, शहनाज क्रीम, निविया क्रीम, फेम क्रीम, अलीविया क्रीम, पॉन्ड्स क्रीम, हार्बर क्रीम, गार्नर क्रीम, शिंटू क्रीम, जिंटू क्रीम। डॉक्टर साहब लेडीज के ऊपर लिखते हैं और कहते हैं डॉक्टर एलएस जॉन राइट अबाउट लेडीज दैट द स्किन ऑफ men hard and the light of sun is very benefit for male and the skin of female is soft and delicate and the light of sun is poison for her, is poison for her। वो कहते हैं कि मर्द की जो स्किन होती है वो सख्त होती है और सूरज की रोशनी मर्द के जिल्द के लिए बहुत फायदेमंद है, और औरत की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, नर्म होती है, नाजुक होती है। और सूरज की रोशनी उनके जिल्द के लिए जहर है। अगर डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी तो जिल्द फीकी पड़ जाएगी, रंग काला हो जाएगा, पेशानी में झुर्रियां आ जाएंगी, बालों में चमक कम हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि लड़कियों को चाहिए, औरतों को चाहिए, माओं को चाहिए, बहनों को चाहिए कि अपने चेहरे को सूरज की रोशनी से छुपाएं, सूरज की रोशनी से बचाएं। तो जो हमारी माँ बहनें मसाज पार्लर जाती हैं, ब्यूटी पार्लर जाती है, हजारों रुपयों को लोशन क्रीमों में बर्बाद करती हैं, उनको मैं ताजदार मदीना काकर घाटी से एक पैगाम देना चाहता हूँ। ए मेरी बहनों, आपको मसाज पार्लर जाने की जरूरत नहीं, ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं। तो मुझसे पूछ सकती हैं भैया अपनी खूबसूरती को हम कैसे बरकरार रखें? तो मैं उनसे कहूंगा न मसाज पार्लर जाने की जरूरत, न ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत। अरे खुदा की कसम, सिर्फ पर्दा कर लो, पर्दे की जरूरत है। मैं शर्तिया कहता हूँ, न उनके कीले निकलेंगी, न उनके दाने निकलेंगे, उनका हुस्न दोबारा हो जाएगा।
اور کشش بڑھ جائے گی. یہ کون بول رہا ہے؟ اہل چون بول رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ غیر مسلم ڈاکٹر کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک عیسائی سرجن کہہ رہا ہے. کہاں سے؟ امریکہ سے. کب؟ آج. لیکن پیغمبر کائنات نے عورتوں کو 1400 سال پہلے شرعی پردے کا حکم دے کر تمام نقصانات سے بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ذہن انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں رسول، ہمارے ہیں رسول. تو معلوم ہوا کہ دنیا دھیرے دھیرے اسلام کی طرف بڑھ رہی ہے.